Good morning everyone, a pleasant morning everyone, every student. So today I have come back with another video, and in this video we are going to learn about the pollination and their kinds. What are the different kinds of the pollination? And you already know about the pollination because you have studied in your previous classes what you mean by the pollinations. So let's get started the video with the first topic, that is pollination, and then we will discuss about their kinds of pollination. What are the different kinds of pollination, what are the different types of pollination that you have to study in this section, okay, in this session. So let's get started with the first topic in your NCERT. So here you can see that 2.2.3 pollination, that is the topic. So in the first line that you can see here, the preceding sections you have learned that the male and female gametes in the flowering plants are produced in the pollen grain as well as in embryo sac. Okay, so you know about what where is male gametes occur, where is female gamete occurs. So you know very well the male gamete is in pollen grain and female gamete it is in embryo sac. Okay, just I told you in the previous session. So as both the types of the male as well as female gametes are non-motile because they cannot move, so that's we are saying they are non-motile gametes. Okay, so if they cannot move, they cannot go, so what the procedure that we have to know, that we need to know the how can be pollen grain transfer to the stigma. So there is a process which are going to use, we are going to discuss right now. ओके, सो क्योंकि वो नॉन मोटाइल है, सो दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर द फर्टिलाइजेशन टू अकर, क्योंकि हमें पोलन ग्रेन्स और एज वेल एज की हमारा जो फीमेल गैमेट है यानी एम्ब्रियो सैक में, सो वो भी नॉन मोटाइल है. तो अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा उनके बीच में, क्योंकि वो नॉन मोटाइल है तो एक दूसरे के पास कैसे जाएं. सो यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज पॉलिनेशन. सो हाउ इज दिस अचीव्ड, तो वो प्रोसेस कौन सी है, पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन होता क्या है, so you already studied in your previous class, or in if I talk about the smaller section, so like in 8th class, in 7th class you have studied कि pollination होता क्या है. It is a transfer of pollen grains. It is a transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower. So एक pollen grains का transfer होना एक तरफ से, दैट मीन्स कि एंथर की साइड से पोलन ग्रेन्स, क्योंकि एंथर मेल पार्ट होता है, सो वहां से पोलन ग्रेन्स आएंगे एंड देन वो ट्रांसफर होंगे थ्रू द मीडियम, थ्रू द पोलिनेटर्स, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हम कुछ मीडिएटर्स की, कुछ पोलिनेटर्स की, कुछ एजेंट्स की, तो उनकी वजह से पोलन ग्रेन आएंगे एंड देन वो जो कि फीमेल पार्ट है यानी स्टिग्मा के ऊपर जाके फॉल ऑफ हो जाएंगे. सो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. सो यू हियर यू कैन सी दैट पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव द प्रोसेस. This objective, what is the objective? Our objective is to transfer the pollen grains. So transfer of pollen grains, that is a shed from the anther, जो गिर जाते हैं एंथर से निकल के, तो फिर वो कहाँ गिरेंगे. सो मीडिएटर एजेंट्स हो सकते हैं, लाइक बीज हो सकती हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, ये कुछ बर्ड्स हो सकती हैं, तो उनकी वजह से वो उनके साथ स्टिक हो जाते हैं एंड देन वो स्टिग्मा के ऊपर आकर गिर जाते हैं. सो द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma is called pollination. So flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollinations. क्योंकि यहाँ पर हमें मीडिएटर्स की यानी पॉलिनेटर्स की या एजेंट्स जिसको हम बोलते हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है. तो ऐसे ही फ्लावर्स के पास क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप की अडेप्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से पॉलिनेटर्स यानी कि एजेंट्स वहाँ पर उनके पास आते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ को एजेंट्स. सो उसकी वजह से इवन, और अगर एयर की बात करें तो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि वो एयर में इजीली फ्लो कर जाएं, एयर इजीली रन कर जाएं, ठीक है. सो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके की बनी होती है पोलन ग्रेन्स की. सो यहाँ पर अडेप्टेशंस हैं जो कि फ्लावर की वो काफ़ी इजीली तरीके से उनकी होती हैं, तब जो कि हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में. So they make us of the external agents. You know very well what are the external agents. So I told you just right now that key pollinators, like pollinators में क्या हो सकता है, विंड हो सकती है, हवा हो सकती है, वाटर, लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स. सो ये जितने भी क्या हैं, ये क्या है, सभी के सभी कैन लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स. सो जस्ट दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज kind of pollinations. What are the different types of pollination? So we have divided
the kinds of the pollination into two categories. First is self pollination and second is cross pollination. What are these? Self and cross pollination. Okay, so we have divided into two categories, cross and self pollination. So now discuss with the first. So as I told you that there are two types of pollination kinds. So first is self pollination. So we have divided self pollination further into two groups. First is autogamy and second will be Geitonogamy. Geitonogamy here will be, that is second, Geitonogamy. So we have divided because we have divided further self pollination into two groups. First is autogamy and second it is Geitonogamy. Okay, Geitonogamy. And third will, which is cross pollination. So the cross pollination another name is Xenogamy. Okay, Xenogamy. So हमने क्या किया यहाँ पर? सबसे पहले हमें जानना है self pollination. As a name suggests, self pollination. So we can say it is autogamy या auto pollination. So auto जहाँ पर भी लग जाता है आपको पता है, name suggests it is auto. सो ऑटोगैमी में होता क्या है, देखो पहले इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि एक फ्लावर है, मान लीजिए एक फ्लावर है, सॉरी फ्लावर की स्ट्रक्चर थोड़ी पुअरली डेवलप्ड है, मान लीजिए ये एक फ्लावर है. ओके, सो अगर, क्योंकि एक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्मोजाइट फ्लावर है, सो इसी के अंदर दोनों चीज़ें होंगी, दोनों इन द सेंस कि मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट इसी के अंदर हैं. मान लीजिए ये जो गैमिट है, सॉरी जो एंथर है, पोलन ग्रेन इसके ऊपर लगे होंगे और स्टिग्मा है जो कि फीमेल पार्ट है. तो ये जो एंथर होंगे जो पोलन्स होंगे वो इसके ऊपर शेड ऑफ हो जाएंगे, इसके ऊपर गिर जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर. एक ही फ्लावर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होंगे, एक ही फ्लावर के पॉली ग्रेन्स उसी सेम फ्लावर के अंदर ही उसके ऊपर जाके गिर जाते हैं, तो वहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है. तो ये होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक ही फ्लावर के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं. सो यहाँ पर थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं. इन दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इट इज़ अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर. देखो मैंने बताया एक ही फ्लावर के अंदर ये चीज़ हो रही है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. बिल्कुल सही जो अभी बताया कि एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. एक ही फूल के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं. ओके, दोनों के दोनों उसी के अंदर है, तो यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है. In a normal flower which opens and exposes the anther and stigma, complete autogamy is rather rare. अगर ऐसे फ्लावर हैं, क्योंकि देखो एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, और अगर फूल वो जो फ्लावर है वो ऐसा हो कि वो ओपन होता है, एक्सपोज होता है, एंथर एंड स्टिग्मा उसके एक्सपोज का मतलब बाहर से दिखते हैं, वो खुले रहता है. देखो ये फूल है, खिल गया है, तो उसके मेल और फीमेल दोनों के दोनों हमें एक्सपोज हो गए, दिख गए हैं, ओपन हो गए हैं. सो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं हो सकती. कंप्लीट ऑटोगैमी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है उसी फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है उसके पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाएं. तो ऐसा इससे क्या पता चल रहा है इसमें? इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट ऑटोगैमी तो होगी नहीं. कंप्लीट ऑटोगैमी कब होगी? कंप्लीट तब होगी जब उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरे. ये होती है कंप्लीट ऑटोगैमी. सो कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर होती है क्योंकि दूसरे फ्लावर के भी उस फ्लावर के अंदर आ सकते हैं पोलन ग्रेन्स. ओके, सो कंप्लीट तो है नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पर लिख देते हैं कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर. अगर फ्लावर खिलने वाले हैं, जिसके जो मेल एंड फीमेल पार्ट हैं जो एक्सपोज होते हैं, दिख रहे हैं बाहर, तो उस फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी रेयर होती है. कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं दिख सकती. तो आपको पता क्यों नहीं दिख सकती है? ठीक है. सो ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्ड synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should be lies close to each other so that the self pollination can occur. यानी कि ऐसे फ्लावर के अंदर क्या होना चाहिए कि जो ऑटोगैमी अगर इन फ्लावर के अंदर हो रही है तो उनकी जो सिंक्रोनमी है पोलन रिलीज की एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ये दोनों के दोनों एक ही साथ होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि स्टिग्मा पहले ही मैच्योर हो गया,
पोलन ग्रेन नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में किसी और के पोलन ग्रेन आ जाएंगे उस स्टिग्मा के ऊपर, तो उनके बीच में हो गया, तो ऑटोगैमी तो नहीं हुई। हो सकता है कि स्टिग्मा मैच्योर ना हो, स्टिग्मा रिसीव करने लायक ना बना हो उस टाइम तक और पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो पोलन ग्रेन किसी और के ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर ऑटोगैमी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में होना क्या चाहिए कंप्लीट ऑटोगैमी के लिए कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। सिंक्रोनाइज्ड इन द सेंस कि एक साथ दोनों का दोनों जो मैच्योरिटी है वो एक साथ होगी, तो तभी उनके बीच में ऑटोगैमी हो सकती है। रिमेंबर ऑटोगैमी कंप्लीट कब होगी? जब दोनों के दोनों पोलन भी यानी एंथर और यानी कि एम्ब्रोसाइकल क्या था हमारा स्टिग्मा, ये दोनों के दोनों अगर एक साथ मैच्योर हो जाए तो उनके बीच में कंप्लीट ऑटोगैमी होगी। अगर ऊपर नीचे हो रहा है कि कभी पोलन ग्रेन पहले अब मैच्योर हो रहा है, कभी या स्टिग्मा मैच्योर पहले हो रहा है, तो उनके बीच में कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं होगी। सो सिंक्रोनाइज्ड वो होने चाहिए, एक ही साथ दोनों काम होने ही चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि ऑटोगैमी को हमने 2 पार्ट्स में, क्योंकि 2 टाइप्स के फ्लावर्स हो सकते हैं ऑटोगैमी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि ऑटोगैमी के लिए हमने यहाँ पर फ्लावर्स के टाइप देख रखे हैं, क्योंकि बना रखे हैं। सो वी हैव डिवाइडेड द फ्लावर्स इनटू 2 कैटेगरीज, कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कौन कौन से हैं? कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। यहाँ पे 2 कंडीशंस हमने लगा दी हैं, क्योंकि ऑटोगैमी को हमें देखना है कि फ्लावर्स 2 तरीके के हो सकते हैं। एक वो फ्लावर्स जिनके मान लीजिए फ्लावर है ये, और इसके जो मेल और फीमेल पार्ट है वो एक्सपोज हो, यानी फूल जो है फ्लावर है वो खिल गया है, ओपन हो गया है, तो उसके जो मेल और फीमेल पार्ट है वो ओपन होंगे, बाहर से दिख जाएंगे, एक्सपोज होंगे। तो ऐसी कंडीशन में उस फ्लावर को हम कैसा बोलेंगे? ऐसे प्लांट को जिसके जो एक्सपोज हो जाते हैं ऑर्गन्स मेल फीमेल, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। ओके, लिखा भी है यहाँ पर कैस्मोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। जिनके स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज हों वो होती हैं कैस्मोगैमस। और इसका उल्टा कर देंगे अगर, कि जो एक्सपोज ना हो, जो ओपन ना हो, कभी भी ओपन ना होते हों, वो बंद हों यानी क्लोज्ड हों। यानी कि एक फ्लावर है, ये फ्लावर है क्लोज्ड, इसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पोर्शन है, दोनों के दोनों क्लोज्ड हैं, एक्सपोज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो देखो ऑटोगैमी के अंदर दोनों तरीके के फ्लावर हो सकते हैं। देखो हम ये तो बोलेंगे कि दोनों के अंदर ऑटोगैमी होगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों के अंदर किसके अंदर कंप्लीट ऑटोगैमी के चांसेस ज़्यादा होंगे, सो जाहिर सी बात है जो ओपन नहीं होंगे उनके अंदर चांसेस होंगे कंप्लीट ऑटोगैमी के। सो वो कौन से फ्लावर्स हैं? क्लिस्टोगैमिक जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर कंप्लीट ऑटोगैमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, मेल फीमेल दोनों हैं, दोनों के दोनों जब मेल फीमेल हैं और फूल है वो बंद क्लोज्ड है, इसी के अंदर दोनों हैं, तो उनको वो पोलन ग्रेन तो कहीं से आएंगे ही नहीं, पोलन ग्रेन्स किसी के कहीं से भी अंदर जा ही नहीं सकते क्योंकि क्लोज्ड हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसी के फ्लावर्स, इसी के पोलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा के ऊपर फॉल ऑफ हो जाएंगे, उसी के ऊपर गिर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमें किसी दूसरे प्लांट की नीड नहीं हुई। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन से कोई मतलब नहीं था कि किसी और के फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, यहाँ पर तो इसी फ्लावर के अंदर ही सब कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर कैसी कंप्लीट ऑटोगैमी हो जाएगी, देखने को मिलेगी। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर ही बोर्ड में पूछा भी जाता है कि कौन से फ्लावर हैं जिनके अंदर कंप्लीट ऑटोगैमी देखने को मिलेगी, तो वो होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। हालांकि इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कैस्मोगैमस फ्लावर्स वो होंगे जहाँ पर ओपन होते हैं, मेल और फीमेल ओपन होते हैं, तो वहाँ पर तो कंप्लीट दिखने को रेयर ही मिलती है क्योंकि दूसरी तरफ से पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से हो सकते हैं या कैस्मोगैमस, तो यहाँ पर कंडीशंस हैं जैसे कि वायला है, ऑक्सैलिस है, और फिर हमारी कॉमेलिना है, और ये हमारे कुछ प्लांट्स हैं जो कि जैसे मूंगफली भी आपने सुना है, एरेकिस। सो ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि 2 टाइप्स के फ्लावर्स हमें प्रोड्यूस करते हैं, 2 तरीके के फ्लावर्स, एक खुले हुए और एक बंद वाले। तो दोनों को हमने देख लिया कि कौन कौन से होते हैं, तो आपने देख लिया है। फिर अगर पिक्चर की बात करें तो क्योंकि पिक्चर्स में यहाँ पे दिखा रखा है कि देखिए यहाँ पर इसके अंदर देखो, इस पिक्चर की अगर मैं बात करूँ, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं क्योंकि फ्लावर बंद हैं, क्लोज्ड हैं, ओपन नहीं है, और ये खुले हुए हैं यानी कैस्मोगैमस है जो कि ओपन एक्सपोज्ड एरिया पार्ट्स होते हैं मेल फीमेल। ओके, और सबसे ए पोर्शन क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। ओके, जो कि मूंगफली का है। सो
हाइपोमिया आई थिंक। फिर नेक्स्ट टॉपिक कि होता क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि ऑटोगैमी किस तरीके से किसके अंदर होने वाली है। तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आने वाली हैं कि द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। मैंने बता दिया आपको कि ऑटोगैमी कंप्लीट देखने को मिलेगी क्योंकि दूसरे पोलन ग्रेन्स आने के चांसेस ही नहीं है क्योंकि वो क्लोज्ड हैं। सो फिर आते हैं क्वेश्चंस कुछ एनसीईआरटी का कि कैस्मोग्रास फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट सीन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। देखो क्योंकि कंप्लीट ऑटोगैमी हो रही है, एजेंट से हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है, पोलिनेटर से हमें मतलब नहीं है कि पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ के आएगा या इंसेक्ट लेकर आएगा या बर्ड लेकर आएगी, कौन लेके आएगा, वाटर से आएंगे, हमें इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है क्लिस्टोगैमस के अंदर। तो इसीलिए इससे क्या पता चल रहा है, हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर सीड सेट, सीड जो बनने वाला है वो एश्योर्ड है, 100% चांसेस है सीड बनने के। ओके क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो होना ही है क्योंकि अंदर ही दोनों के दोनों बंद फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों है। तो इससे ये फ़ायदा है, ये इसका एडवांटेज है, एक फ़ायदा है। ठीक है, दूसरा एक फ़ायदा ये भी कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू दी प्लांट। दोनों ही हैं, फ़ायदेमंद भी है नुकसानदेह भी। देखो फ़ायदेमंद तो ये है कि एश्योर्ड सीड सेट मिलने वाला है, सीड सेट तो मिल ही रहा है, सीड बन रहे हैं हमारे, एक फ़ायदा हो गया है। दूसरा फ़ायदा हम ये कह सकते हैं कि कंडीशंस कैसी भी हो अनफेवरेबल भी होंगी। अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि जैसे कि पोलन ग्रेन्स ही ना आए, कोई पोलन ग्रेन्स ना आए, कोई पोलिनेटर कोई लेकर ही ना आता। तो लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ के अंदर, एक ही बंद फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ें हैं, तो ये ऐसी कंडीशन भी है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस भी नहीं होंगी, तो इसलिए फ़ायदेमंद है कि सीड सेट तो एश्योर होने वाला है। ओके, और डिसएडवांटेज क्या हो सकती हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि वहाँ पर क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ें हो रही हैं, दोनों चीज़ें हैं, दोनों इन द सेंस कि दोनों पार्ट है मेल फीमेल, तो 100% पॉलिनेशन होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो यहाँ पर वेरिएशन, यहाँ पर जो इवोल्यूशन होता है जेनेटिकली वो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? कि यहाँ पर जेनेटिकल जो जीन्स हैं वो चेंज होकर नहीं आ रहे हैं पोलेंस के, वही सेम प्लांट में होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसकी डिसएडवांटेज है। और इनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये लिखने ना अंडरलाइन कर लेना कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन इनके अंदर हो जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर। डिसएडवांटेज है, इसका नुकसान है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब कि जो वही प्लांट बार बार रिप्रोडक्शन करते जा रहे हैं, 100% रिप्रोडक्शन होना ही है। और ऐसी कंडीशन में कोई उनकी जो फिजिकल, उनकी जो फिटनेस है उसके ऊपर, उनकी जो स्ट्रेंथ है उस फ्लावर की, उस प्लांट की, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बार बार रिप्रोडक्शन करने की वजह से उनकी फिटनेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि एक तरीके से उनके ऊपर डिप्रेशन आता है कि ये तो होना ही है। ओके, सो सेल्फ पोलिनेशन का सेकंड पार्ट दैट इज गाइटोनोगैमी। गाइटोनोगैमी, ऑटोगैमी हमारा हो गया है। गाइटोनोगैमी देखो क्या होता है, क्योंकि ऑटोगैमी में अभी तक हमने ये देखा एक ही फ्लावर की बात हो रही है, सिर्फ उसी फ्लावर के अंदर सब कुछ हो रहा था। अब आता है गाइटोनोगैमी, इसमें कुछ फ्लावर्स ऐड ऑन होने वाले हैं लेकिन प्लांट सेम ही होगा। यानी एक फ्लावर के सॉरी मान लीजिए एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, इसके पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आ जाए या इसके पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आ जाए, यानी प्लांट वही रहेगा, प्लांट एक ही है, प्लांट सेम ही है, ब्रांच भी वो सेम ही है। अब आपको भी पता है एक ब्रांच पे काफ़ी सारे फ्लावर्स हो सकते हैं। सो एक ब्रांच पर काफ़ी सारे फ्लावर्स होंगे तो पोलिनेशन ये हो सकता है कि इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाएं उसी इस ब्रांच के, तो ये होता है गाइटोनोगैमी। सो यहाँ पर लिखा भी है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही प्लांट है, फ्लावर्स दो हैं, एक के पोलन ग्रेन्स दूसरे पे जा रहे हैं, ओके, दूसरे के पोलन ग्रेन्स इस पे आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं गाइटोनोगैमी। ओके, सो ऑल्दो गाइटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शनली अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे एक ही फ्लावर के अंदर तो नहीं हो रहा है, दूसरा फ्लावर यूज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ क्रॉस पॉलिनेशन का एक फंक्शनली पार्ट हो सकता है। सेल्फ नहीं, पॉलिनेशन क्रॉस का भी ये पार्ट हो सकता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ पॉलिनेटिंग एजेंट। क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए है क्योंकि इन्वॉल्व करता है कहीं ना कहीं पॉलिनेटिंग एजेंट्स इसमें यूज़ होते हैं, क्योंकि इधर से इधर आने के लिए पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एजेंट्स की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। एयर हो सकती है, वो इंसेक्ट्स हो सकते हैं। सो जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी। अगर जेनेटिकली देखा जाए, क्योंकि जेनेटिकली इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये वाला फ्लावर उसी प्लांट का, ये दूसरा प्लांट
फ्लावर उसी प्लांट का, तो दोनों के जीन्स सेम ही हैं, दोनों के जीन्स सेम ही है, तो जेनेटिकल तो सिमिलर है, इसलिए हम इसको सेल्फ के अंदर काउंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑटोगैमी का पार्ट भी हो जाता है क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर है। द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ही पोलन ग्रेन्स जो आ रहे हैं वो एक ही प्लांट से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सेम ही जेनेटिकली होंगे। सो लास्ट आता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, जिसका दूसरा नाम भी है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी जो कि जाहिर सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहाँ पर अब 2 डिफरेंट प्लांट होंगे, 2 डिफरेंट प्लांट, लेकिन जो स्पीसीज होंगी वो सेम ही होगी, प्लांट दोनों अलग होंगे लेकिन कैटेगरीज तो उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, स्पीसीज होंगी वो तो सेम ही है। सो होगा क्या, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ओके, फिगर भी यहाँ पर देख लेते हैं, फिगर में इसमें देखा है जो कि है 2.9b क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स, दिस वन क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है। ओके, तो क्रॉस पॉलिनेटेड यानी जीनोगैमी में हमें क्या देखना है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट है, याद रखना, इसमें अभी तक सेम प्लांट था, यहाँ पर डिफरेंट प्लांट यूज हो रहे हैं। सो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, क्योंकि दोनों प्लांट अलग अलग हैं, एक प्लांट दूसरा प्लांट, इस प्लांट के ऊपर पोलन ग्रेन्स आ गए या इसके ऊपर आ गए, तो देखो ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है, तो इसके जीन सेम तो नहीं होंगे, स्पीसीज सेम है लेकिन जीन सेम नहीं हो सकते, तो जीन सेम नहीं है तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जेनेटिकली उनके बीच में क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आते हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं वेरिएशंस आ जाते हैं। सो ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि जीनोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी क्या होता है, गाइनोटोगैमी क्या होता है, क्लिस्टोगैमस कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं। सो इजीली समझ में आ गया, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस ज़्यादातर बोर्ड में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उससे रिगार्डिंग। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट सेशन we will try to understand the different types of agents, what are the different type of agents। हालांकि easy topic है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, but I will try to explain as early as possible। So thank you so much। If you like my video, if you enjoyed my video, so you can subscribe, you can like, you can share to your friends। So thank you so much। Stay home, stay safe।